I hope I'm audible, is what I'm assuming at the moment. If I'm not at any point, then Hardik here is going to give me a cue. And we hope for the best that the internet is going to be our friend today and help us have a smooth meeting today. So thank you, everybody. A very good evening to all of you all. And it's great to have you all over here at this interview. And thanks again for joining us. Before I get into the introductions, let me set some ground rules. Of course, to begin with, you all know that I'm Fauzia Sheikh. A lot of you all know me. For those of you all don't, my name is Fauzia Sheikh. I am co-director and founder at FX Business Solutions. I'm Hardik's business partner. And without much ado, let me set some ground rules for this meeting. So like you all realize that we have forced mute everybody, all participants on this meeting today. That is only and only so that we do not have any background noise or any disturbances as the meeting is on. We'll also request you all to take the speaker view, which you will find on the top right corner. There is a gallery view and as well as the speaker view. This so that you are able to see the speakers every time they're talking. Also, in due course of the meeting, if you all have any questions popping up in your head, then by all means, please put them up on the chat. You all see the chat right on the bottom. There is an icon of the chat. You can put that. And we will try to take questions at the end of the interview. We will try to take as many questions as we can. We do not promise, but if the time allows, we will try and take most questions. Also, of course, this interview will be recorded. So just in case you miss any portion by any chance, then please feel free to come back to this interview, which we will put up on all of our very many forums that we are part of. It will go up on the Facebook pages, the groups that we are part of, and also the WhatsApp group that is gaining a lot of momentum now. Right, so that's the rules of the meeting today. Let me also introduce you Hardik. A lot of you all again already know Hardik Harsora. He's right here. Since a lot of you all know, for the benefit of those of you all who don't know Hardik, let me give a semi-formal introduction. Hardik is my co-director. He's founder at FX Business Solutions Private Limited. We started FX in 2009 with the aim to add value to small and medium-sized enterprises. Hardik comes from the background of business process excellence. He's trained and certified on methods like Six Sigma, Kaizen, Lean, COPC, TQM, ISO, to name a few, and that's his expertise. He has also been actively involved in designing and developing the method of Propel, which we use today actively for consulting, coaching, and training. Propel is the only structured method in India which is used in the consulting for the SME, the small and medium-sized businesses. We primarily use this method for growth planning, for performance management, for setting up systems and processes, and for general problem solving in a small business. Other than that, Hardik has trained more than 10,000 entrepreneurs and helped businesses grow. A lot of you on this forum today have also been witness to his coaching and consulting. So that's Hardik. And let me now introduce to you our guest, which I'm very, very privileged to introduce. Mr. Suresh Kherwar is amongst us today. Mr. Suresh Kherwar represents one of the best underwriting brains in credit insurance space in India. He has been directly involved with every phase of credit insurance movement, starting from the product's introduction in India to its restrictions, and now he's actively engaging various stakeholders, including General Insurance Council and IRDA, which is Indian Insurance Regulator, to liberalize credit insurance in Indian market. His work in Indian market for more than 20 years majorly revolved around receivables management space, which includes setting up a successful and profitable reinsurance department in GIC RE, set up Euler Hermes to become #1 in India within 2 years, and floated India's first multinational monoline insurance broking company in India, to name a few. Suresh is also consultant to Gems and Jewelry Export Promotion Council, which is the GJEPC, Ministry of Commerce, Government of India, to work on implementing best credit management practices for gem and jewelry industry.
Suresh actively provides consultancy to ECGC, Indian ECA, and designed one customized product for gem and jewelry industry as first ever industry specific product ever offered by ECGC in its history of 60 years. Suresh is a regular visiting faculty at National Insurance Academy, NIA, the most prestigious institute in India. Apart from this, Suresh is consultant to a few private sector insurance companies, providing technical advices, informing their credit insurance policies and practices. Apart from imparting regular support on underwriting, marketing, and reinsurance of credit insurance policies. So, ladies and gentlemen, that's Mr. Suresh Khairwar, and we are very glad to have you overboard. So, over to you, Hardik. Thank you. Thank you very much, Fauzia. That was a brilliant introduction of myself, obviously, and nice to have you, Suresh, on the panel today. I'm very, very excited and very, very happy because the topic that we are going to discuss today is very close to the hearts of all my clients and everybody that's there in the forum. So I'm 100% sure that this session is going to bring in light for a lot of us on this session. So before I really move ahead, Suresh, I know what you do, but for the easy understanding of the audience here, if you could just simply outline what is it that you do and throw away jargons. Suresh, you're mute right now. Fauzia, can you unmute? Fauzia, can we have Suresh unmuted? Yeah. Yes, I think I'm back. Wonderful. Thank you very much, Fauzia, for our nice introduction. Thank you very much, Hardik, to have us here today. And to summarize what we do, minus the jargons. Obviously, jargons is an important part of consulting business. If you don't put in few more jargons, nobody will be out of job actually very soon. So I'll try. So what we have done in the past around let's say 18 odd years is to work on seller and buyer profiles in a very simpler way. So we have seen all the industries how they work in terms of the sales cycle. So how they identify the buyers, what are the paperworks involved in doing the sales, what are the best practices, invoicing and stuff like that. And we've also closely observed the behavior of buyer when they pay up and when they don't pay up. So over the years, it has been our expertise to really devise various tools and techniques where we identify right buyer, or right amount of trade to be done with the buyer, or right set of paperwork to be done with the buyer, so that we are at the right side of the law, and then right amount of pressure techniques to be deployed when the buyer really slows down the payment or doesn't pay up. Wonderful. So that's the whole cycle we have seen. And at the same time, we'd like to mention that we have concentrated mostly on the larger value, larger transaction, larger segment of clients, and the global business across the board. So we know the documentation involved in exports, and how to strengthen your documentation in exports, and how to recover in foreign countries. We have around 60 offices around the world, through which we really give our clients the closer view and closer consulting on the overseas businesses. But having said that, with the Indian businesses, the domestic businesses, and SME segment, MME segment is very close to our heart, and we feel and we strongly believe that this is the growth area. This is the segment which needs to be given a lot of support, so that in times to come, this really provides the really strong support to Indian economy. So that said, we always keep concentrating on developing newer techniques and tools to help and assist SMEs to manage their receivables in much more effective ways. So just to clarify for the audience once again, when you say receivables, these are
the collections that they need to do. Am I right? Yes, exactly. Yeah. So when we say receivable, we are saying the trade receivable. We are saying the behavior between the buyer and the seller, and what happens when you raise an invoice on credit, that becomes your trade receivable, and then everything revolving around that trade receivable. That's what we try to address and made more effective. Wonderful, wonderful. So Suresh, I've been doing some webinars where I kind of talk to my clients one to one, and I record those sessions and put it up on Facebook. And after COVID-19, okay, there is already a request. Please talk in Hindi, so I'm gonna switch to Hindi. Sure. So बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं मेरे पास. इनफैक्ट हर इंसान जिनसे मैंने बात किया आफ्टर कोविड-19, सभी लोग छोटे व्यापारी जो भी हैं, एवरीबडी इज वरिड, परेशान है कि अब हमारे आउटस्टैंडिंग का क्या होगा. जी. मेजॉरिटी जो भी हमारे छोटे व्यापारी हैं सारे क्रेडिट लाइंस पे काम करते हैं, यानी 2 महीना 3 महीने की क्रेडिट है जो साइकिल में काम करते हैं, एंड कैश फ्लो जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है. जी. तो ऐसे सिनेरियो में व्हाट आर द गैप्स दैट यू, आई एम श्योर आपने भी ये देखा हुआ है, बट व्हाट आर द गैप्स दैट यू सी शुड नॉट हैव बीन ये इशू को बेटर मैनेज करने के लिए? सो अभी तो आई थिंक इस सिचुएशन में, जबकि हम लोग सब देख रहे हैं कि कोविड की वजह से पेमेंट्स डिले हो रहे हैं और होने के चांसेस भी हैं, पार्शली बिकॉज बिजनेस डाउन है ऑटोमेटिकली फॉर वेरियस रीजंस, और पार्टली बिकॉज गवर्नमेंट एक्शन है कॉल्ड फोर्स मेजोर. गवर्नमेंट कह रही है कि आप ऑफिसेज नहीं जाइए, पे नहीं कीजिए, सॉरी पे नहीं कीजिए नहीं, ऑफिसेज मत जाइए एंड स्टे एट होम. सो काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि घर में बैठे वो लोग सारा पे कर सकें. देयर इज सिस्टम ऑफ टेकिंग सिग्नेचर्स एंड ऑल दैट. सो ये इस समय और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके रिसीवेबल्स को आप कुछ भी कर पाएँ. सो ये सिचुएशन वैसी है कि जब ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है तब अपन उसका सोल्यूशन देखने जाएँ. सो आज की सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है और इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस नहीं है. बट ऑब्वियसली अगर हम एक जनरल प्रैक्टिस फॉलो करें, गुड बिहेवियर ऑफ रिसीवेबल, तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन में भी उससे मदद मिलेगी. डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में पैसा नहीं आता है, चाहे आप कितना भी अच्छे मैनेजमेंट फॉलो करें, चाहे आप कुछ भी फॉलो करें, बट आपके लॉसेस जरूर मिनिमाइज हो सकते हैं. एंड व्हेन आई से अच्छी प्रैक्टिसेस जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं बायर को, तो वो बायर को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है, उसका डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि उसका रिकॉर्ड क्या है, ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसी है, और मार्केट रेफरेंस वगैरह हम सब निकालते हैं. बट जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, साइंस ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमी, वो हम SME लेवल पे और ग्रासरूट लेवल पे थोड़ा जल्दी ही फील कर लेते हैं, बिकॉज वी सी द इम्पैक्ट मच 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 क्विकर. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, थोड़ा बहुत अगर पेमेंट नहीं भी आ रहा है तो किसी और तरीके से कॉम्पनसेट होता रहता है, तो वो साइकिल थोड़ा रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है. बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पेमेंट स्लो होता है, तो वो बिहेवियर बहुत जल्दी दिखने लग जाता है. सो ये साइंस है, हमको इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. ये मान के चलना चाहिए कि कैटास्ट्रोफी आने ही वाली है, चाहे वो आए या ना आए. मान लीजिए कोविड नहीं भी आता तो भी अगर अपन उस तरह से सोच के चलते हैं कि अगर ये पेमेंट 10-5 दिन और डिले होता है और उसके उसी टाइम पे कोई कैटास्ट्रोफी आती है तो क्या होगा. सो हमें ये चीज़ें, ये जो आज का सिचुएशन है कोविड-19, ये याद दिलाता है कि ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए हमें कि कभी भी कैटास्ट्रोफी स्ट्राइक हो सकती है. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम. एंड हमें यही सोच के चलना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि ये पेमेंट 15 दिन और डिले हो गया और उस समय और भी कोई कैटास्ट्रोफी आ गई तो हमें क्या क्या करना चाहिए. तो अगर SME MME और छोटे बिजनेसमैन जो है अगर उससे इस तरह से प्रिपेयर्ड रहते तो शायद वो काफ़ी बिजनेसेस थोड़े बहुत कर्टेल डाउन कर लेते, उन रिस्की लोगों को ना बेचते जहाँ पे कि उनको फिर भी उम्मीद थी कि पेमेंट डिले हो सकता है. जब हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, तब हमको ऐसा लगता है कि चलो भाई ये आदमी डिले कर रहा है, 10-15 दिन डिले कर रहा है, बट स्टिल ही विल पे, तो मैं इसको भी सप्लाई कर देता हूँ. सो ये एक अच्छी थिंकिंग है, अग्रेसिव थिंकिंग है. बट हमें एज अ रिसीवेबल रिस्क मैनेजमेंट हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप ये सोचिए ऑल द टाइम दैट रिस्क कभी भी हो सकता है. और जब आप देखते हैं इनिशियल स्लो डाउन साइंस, तब आपको अपने आप को थोड़ा सा बिजनेस में बैकफुट पे आना चाहिए
और ये सोच के चलना चाहिए कि अगर कैटास्ट्रोफी हिट हो गई तो अच्छे बायर जाएंगे ही जाएंगे और आपका एक्सपोजर जो थोड़े से रिस्की बायर्स पे है वो खराब हो सकता है. सो बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन सेव यू. Wonderful. So Suresh ji, before we go into, of course मुझे जानना है और के best practices जब आप बोल रहे हो कि good receivable management, so exactly what is a good receivable management? But before I go into that question, हर एक छोटा व्यापारी, एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स जो भी हैं या जिनके साथ हम कॉन्टेक्ट करते हैं, ये हमेशा एक चीज सोचते हैं कि अरे कस्टमर आ रहा है ना, तो उसको आने दो, बिकॉज कस्टमर. तो क्या इम्पोर्टेंट है, कस्टमर आना इम्पोर्टेंट है या पैसा आना इम्पोर्टेंट है? करेक्ट. नहीं, डेफिनेटली कस्टमर आना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा यू नो सेल्स इज डेफिनेटली a very very important aspect. सेल्स रहेगा तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो सामने दिख रहा है या जो आ रहा है दैट मे और मे नॉट बी द बेस्ट कस्टमर. सो हम जब हम ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हम उसमें सबसे पहला पॉइंट ये हमारा ये आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बेटर कस्टमर और बेस्ट कस्टमर. अगर हमारे सामने कोई ऑर्डर है आज की डेट में और हमारे पास ऑप्शन है कि हम थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और 4 5 6 8 10 और ऑप्शंस निकालें और हम ये देखें कि प्रायोरिटाइज करें कि हम किस कस्टमर को आज की डेट में सेल करें और ये हम कंटिन्यूस प्रोसेस रखें ऑल द टाइम, तो डेफिनेटली कस्टमर भी आएगा और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर फिल्टर होते जाएंगे आपके एंड यू गेट अ स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट customer is the most important thing definitely for any business, but identification of the right customer. You can have a go error and you can have a drop error with the customer. You can go ahead with better looking customer or better behaving customer and you end up losing your money. You drop a very good customer and you end up losing the business. So these are the questions you always have to keep in mind, but identification of the right customer at that point in time. So when we say identification, we always put things into perspective. That customer is good. I know some of the जैसे कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, हमको सबको पता है उनका पेमेंट बिहेवियर, तो थोड़ा स्लो पे करते हैं जानबूझ के. दे हैव सम सिस्टम्स इन प्लेस जिनकी वजह से पेमेंट वो देते ही नहीं है टाइम पे, मान लीजिए. बट उसका ऑर्डर आ रहा है और सामने ये जो कुछ थोड़ा सा इतना बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है और वो दूसरा एक कस्टमर है जो कि आपके साथ डील करना चाहता है. तो अगर आप आज की डेट के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करेंगे कि मान लीजिए कैटास्ट्रोफी होती है, कल को हमारा 10 दिन पेमेंट डिले होता है तो क्या हो सकता है, और अगर आप उस समय सही चुनाव लेंगे कि भाई मैं बड़े कस्टमर के साथ करूं या फर्स्ट टाइम कस्टमर के साथ करूं, सो दैट विल prevent your customer base or businesses in going into trouble. So identification at the context at that point in time is the most important. तो सुरेश जी, मैं आपको एक थोड़ा सा मेरा स्टोरी बताता हूँ. मेरे बिजनेस में हमारा ये मानना है. ओके, आर यू एबल टू हियर मी और एम आई टू? आपकी आवाज थोड़ी लो है. Just give me 1 second. 1 second. Now? हाँ जी बेटा. Is better. ओके. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बिजनेस में वी प्रैक्टिस दिस. वी से दैट इट्स नॉट कस्टमर नहीं साइन अप होगा तो हमें चलेगा, बिकॉज साइन अप करके मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर इन बिजनेस, राइट? तो हम ये मैं ये फॉलो करता हूँ हमारी कंपनी में कि जो भी कस्टमर साइन अप करेगा, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो ही वो सही कस्टमर है, वरना हम सिर्फ चैरिटी कर रहे हैं. और अगर चैरिटी ही करनी थी तो चैरिटी करने के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं और भी तरीके हैं, तो वो वहां करिए. बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमको फोन करके भी बताया है कि हार्दिक भाई कौन से वर्ल्ड में रहते हो, हर महीने थोड़ी ना पेमेंट होगा, थोड़ा तो आपको क्रेडिट लाइन देना ही पड़ेगा, थोड़ा तो आपको चलाना ही पड़ेगा. तो हम वी डिसाइड दैट ओके, यू नो व्हाट, अ पेइंग कस्टमर इज व्हाट रन्स द बिजनेस, नॉट अ नॉट पेइंग कस्टमर. हाँ, ऑफ कोर्स अगर जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं, जेन्युइन कुछ ट्रबल है, तो वो एक्सटेंशन कर दिया आपने, वो बात अलग हो गई. बट जस्ट एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस वो एक्सटेंड करना इज समथिंग दैट वी don't appreciate as an organization. So is this the right way to go about it, or should we maybe take some other balancing act? I think इस क्वेश्चन के 2-3 एस्पेक्ट हैं.
And definitely this leads to a second important point. जो आइडेंटिफिकेशन एक कस्टमर का जब हो जाता है, मान लीजिए अब आपके पास वो कस्टमर हो गया, नाउ आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि अब ये कस्टमर हमको बोल रहा है कि थोड़ा सा डीले कर दीजिए, थोड़ा सा बाद में पेमेंट ले लीजिए। सब लोग कस्टमर क्रेडिट लाइन देते हैं, आप भी दीजिए नहीं तो मैं दूसरे के साथ धंधा करने लगता हूँ। सो ये चीज़ें डेली हो रही हैं ऑब्वियसली, एंड समटाइम्स कस्टमर्स जेन्युइनली गेट इन ट्रबल बिकॉज उनके पेमेंट्स आगे अटक जाते हैं। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। बट दैट्स वेयर दी, जैसे आपने एक बात की चैरिटी की, हम वो बात करेंगे इमोशनल अटैचमेंट की। हम ये बात करेंगे कि आज की डेट में आप बिजनेस में हैं, आपको बहुत सारे तरीके वैसे भी पता है। जस्ट यूज योर लॉजिक टू आइडेंटिफाई कि क्या ये कस्टमर जो क्रेडिट मांग रहा है ये रियली सही रीजन से मांग रहा है या जस्ट लाइक दैट। और यू कैन स्मेल, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि कहीं ये फंड्स डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं यू नो दीज गाइज आर बाइंग फ्रॉम यू एंड पुटिंग देयर मनीज इनटू रियल एस्टेट एंड स्टफ लाइक दैट, बट यू स्टिल हैव अ विशफुल थिंकिंग कि पे कर देगा। सो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए बायर, अब उसको किस तरह से एक्सटेंड करना है, क्रेडिट एक्सटेंड करना है, क्रेडिट देना भी है या नहीं देना है, ये इट्स कॉल्ड अ बायर मॉनिटरिंग। तो जब आप सारे कस्टमर को इमोशंस हटा के आप उसको एक बायर ब्रैकेट में डालते हो, उसकी बकेटिंग करते हो, तो दैट्स अ मोर टेक्निकल एंड स्ट्रक्चर वे टू थिंक कि हमको इसको देना है कि नहीं। तो आप एक बार डाल दीजिए, उसके आप एजिंग एनालिसिस कीजिए कि कौन सा बायर है जो हैबिचुअली आपको लेट पे करता है, कौन सा बायर है जो कि कभी कभी आपको लेट पे करता है, कौन सा बायर है जो हमेशा पे करता है, कौन सा बायर है जो अब मांगने आया है कि हमको लेट चाहिए। और जब वो मांगने आया है कि उसको लेट पेमेंट करना है, तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्या वो वाकई में बिजनेस में डिप्लॉय कर रहा है पैसा, क्या उसका वाकई में पैसा अटक गया है। So when you do this analysis of buyer monitoring, put it into bucket and put a reasoning around all the buyers, then you would know for sure कि ये आदमी के पास पैसा है बट ये फिर भी एक्सटेंशन मांग रहा है क्रेडिट का। सो तब आपको वेरी स्ट्रिक्ट कॉल लेना चाहिए, बिकॉज बिजनेस इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ योर इमोशंस। आज आपने मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मुझे हमेशा पैसा दे देता है, चलो उसने रियल एस्टेट में डाल दिया, उसका पैसा फंस गया, जब आएगा तो दे देगा। दैट्स योर इमोशंस। बट इफ द मनी डज नॉट कम इन, योर बिजनेस गेट्स इम्पैक्टेड। सो आपको सिर्फ एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए मॉनिटरिंग के टाइम, कि अगर ये एनालिसिस आपका ये कह रहा है कि ये फंड्स इसके वापस से बिजनेस में डिप्लॉय नहीं हो रहे हैं, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो नेचुरली ऑब्वियसली रियल एस्टेट से भी पैसा आ सकता है। बट व्हेन यू एक्सटेंडेड द क्रेडिट, व्हेन यू आपने सामान उसको बेचा था, आपने ये बिजनेस को देख के बेचा था कि ये बिजनेस वो आगे माल बेचेगा और उसका पैसा मुझे देगा। आप तब आपने ये नहीं सोचा था कि वो रियल एस्टेट से प्रॉफिट कमा के या शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें डिस्कनेक्ट करनी चाहिए बिजनेस जब आप डिसीजन लेते हैं या क्रेडिट एक्सटेंशन लेते हैं। और आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये पैसा नहीं आया तो आपको अगला माल सप्लाई नहीं होगा। आप अपने कट लॉस करने के लिए, स्टॉप लॉस करने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। सो दैट तो आप डिसीजन उस समय इस तरह से लीजिए, पूरा इमोशंस दूर करके कि भाई क्यों करना है और क्या ये इस ब्रैकेट में आता है कि हैबिचुअल डिफॉल्टर है, तो आपको डेफिनेटली ग्रेजुअली उसको उससे अपना एक्सपोजर लेवल कम ही करते रहना चाहिए। और तभी मैं कह रहा हूँ कि बायर आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आप इस तरह के बायर जो स्लो पे करते हैं आपको, उसको धीरे धीरे आप कम कीजिए, और ऐसे बायर जो कि मार्केट में और भी मार्केट में अवेलेबल है, आप एक्सटेंड कीजिए अपना मार्केट स्पेस। बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एंड हम लोग काफ़ी कंपनीज को हेल्प करते हैं। हमारा तो डे इन डे आउट ही काम है। मान लीजिए आपका बॉम्बे एक एरिया है, आप क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें? आप जयपुर में बेचिए, आप मध्य प्रदेश में बेचिए, आप चेन्नई में बेचिए। हम बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो आपको हेल्प करेंगी, वहाँ बहुत सारे ऐसे अच्छे बायर्स हैं जो कि आपसे सामान चाहते हैं। So buyer identification is a continuous process, and buyer monitoring will answer your these questions कि इनको अभी सप्लाई करना ही नहीं, क्यों क्यों करना है, किस सर्कमस्टांसेस में ये क्रेडिट एक्सटेंशन मांग रहा है। नेचुरली दिस हैज टू बी अगर आपको रीजन लगता है कि डेफिनेटली ये इसको आगे भी परेशानी है, उसका आगे का पैसा अटक गया है, तो उसने किसी और को सप्लाई किया था, नहीं आया, और अगर आप उसको अभी सप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी पूरी सेल साइकिल रुक जाएगी। तब आपको सप्लाई करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ राइट वे, इट इज गोइंग इनटू द बिजनेस। अगर आपको लगता है कि पैसा साइफन ऑफ हो रहा है तो आपको सप्लाई नहीं करना चाहिए, एंड आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए कि आपका पैसा जो उधारी है वापस आए, या आप एनसीएलटी में ले जाइए, कोर्ट केस के जो भी कीजिए, बट इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस। वंडरफुल। सो यहाँ पे हमने 3 चीजों की बात की सुरेश। वन इज हैविंग गुड रिसीवेबल मैनेजमेंट बिहेवियर, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। सेकंड जो हमने बात की बायर आइडेंटिफिकेशन की, कि हम कैसे एक सही बायर को आइडेंटिफाई करें
ताकि हम ये झमेले में पड़े ही नहीं। और तीसरा जो हमने बात किया कि अगर डिफॉल्ट होता है देन हाउ डू वी, हम कैसे बायर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें ताकि हम, अगर पहले स्टेप नहीं हुआ आइडेंटिफिकेशन का और उसके बाद भी डिफॉल्ट होता है तो हम कैसे मैनेज कर सकते जी। हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट एस्पेक्ट पे। बट इफ आई रिफ्रेज जो आपने कहा, इसमें पहली तो ये चीज है कि जमेला तो आना ही आना है, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये दीज आर बिजनेस कंटिन्यूस बिहेविंग डायनामिक थिंग्स, लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, तो इस बार जमेला तो आप कुछ भी कर लें। बट ये है कि जब ये जमेला आएगा, अगर आप टेक्निकली साउंड प्रिपेयर्ड होंगे तो आप हैंडल कर सकते हैं बेटर, और बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट कम होंगे। बट आना तो है ही, ये सारी चीजें आनी ही है बिजनेस में, तो आपको मान के ही चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ अच्छे बायर आइडेंटिफाई करेंगे तो जमेला आएगा ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, आएगा ही आएगा, बिकॉज एवरीबडी गोज टू साइकिल। और दूसरी चीज है कि जब मैं कह रहा हूँ बेटर रिसीवेबल मॉनिटरिंग करेंगे, वो सिर्फ तब नहीं करना है जब हमारा बायर डिले कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब सब कुछ ठीक हो, जब सब कुछ ठीक हो तब भी हमको उसी तरह से मॉनिटर करना है कि अभी कैटास्ट्रॉफी 15 दिन बाद आने वाली है, और जो भी हमको स्लो पेमेंट कर रहा है या एक्सटेंशन मांग रहा है उससे हमको रीजंस पता करने चाहिए क्यों कर रहा है, और वी नीड टू स्टार्ट recovery mechanism or stop supply that point in time, thinking that catastrophe is going to hit, so that will keep our portfolio in a healthy. Sorry, you तो सुरेश, सेकंड पॉइंट पे मैं थोड़ा चले जाऊंगा। बायर आइडेंटिफिकेशन जो हमने बात की, हमारे जितने भी एसएमईज हैं उसमें से मेजॉरिटी एसएमईज आर वंस हु डोंट, नेसेसरी नहीं है कि वो, जरूरी नहीं है कि वो कॉर्पोरेट को सप्लाई करते हैं। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द राइट बायर? व्हाट आर द 3-4 थिंग्स दैट यू कैन डू टू आइडेंटिफाई द राइट बायर? सो बायर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो 2-3 इम्पॉर्टेंट टूल हैं, पहला तो ये कि सबसे पहली चीज़ देखनी है कि आपका वो एग्जिस्टिंग बायर है या नया बायर है। आपको नए बायर्स पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहना चाहिए, पोर्टफोलियो चेंज करते रहना चाहिए। तो नए बायर्स पे अगर आप कॉन्स्टेंटली फोकस करेंगे तो आप ट्रेड फेयर्स में जा सकते हैं, यू कैन गेट रेफरेंसेस, यू कैन गेट ऑल दोस थिंग्स। एंड देन अब जब पता करना है कि ये सारे आपके पास नाम इकट्ठे हो गए हैं, कुछ एक एग्जिस्टिंग है, कुछ एक नए हैं, देन मार्केट में थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं। आप वेबसाइट, आप कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप उसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। देन फाइनेंशियल्स में आप उसके फाइनेंशियल्स देख के एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई एबिटा टू नेटवर्थ क्या है, उसका नेटवर्थ इरोड हो रहा है कि बढ़ रहा है पिछले 3 सालों से, सॉरी। उसके प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसका एबिटा किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका डेट कैसा चल रहा है। ये 2-3-4 चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा असेसमेंट हो जाएगा कि उसकी कंपनी में अगर डेट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, मतलब इज लेवरेज्ड, और आपको अपना बिजनेस सेगमेंट तो पता ही है। तो आप ये देखेंगे कि अगर इतने में कैपेसिटी आदमी बढ़ा रहा है और अगर बिजनेस उतना अच्छा है या नहीं है, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो आपका एक अजम्पशन मिल जाएगा कि हाँ भाई बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, ये कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ही विल पे अप। या फिर अगर वो कैपेसिटी बिल्टअप कर रहे हैं पर आप देख रहे हैं कि बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ साइन दैट मे माइट नॉट पे अप। नेटवर्थ अगर आप देखते हैं तो ये आपको एक, अभी किसी ने शायद उस पे एसएमएस पे डाला है, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट वेदर इज साइफनिंग ऑफ द मनी और नॉट। सो वन ऑफ द मेथड इज टू गेट द हैंग ऑफ फाइनेंशियल्स। वो भी कई बार आप कहेंगे डिफिकल्ट होता है, बट एटलीस्ट यू ट्राई। कई जगह फाइनेंशियल्स मिल जाते हैं, जितना हम सोचते हैं डिफिकल्ट उतना नहीं है। देयर आर एजेंसीज हु आर producing reports of non-registered entities as well. Reports, ओके। थर्ड पार्टी रिपोर्ट आपको 1500-2000 रुपए में मिल जाती है, आप देखिए। और इट्स ईजी, जैसा मैंने बोला नेटवर्थ आप देखिए, तो अगर वो बिजनेस में डिप्लॉय नहीं कर रहा है, नेटवर्क में नहीं लगा रहा है, इसका मतलब पैसा जा कर रहा है। सो दैट्स अ डाइवर्जन, साइन ऑफ डाइवर्जन। अगर नेटवर्थ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, नेटवर्थ वापस से बढ़ रहा है, और हिज रेवेन्यूज आर गोइंग अप, सेल्स आर गोइंग अप, आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी देखिए, मैन पावर में पैसा लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली दीज आर द साइन ऑफ द ग्रोथ रादर देन डाइवर्जन। बट अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, नेटवर्क उसका रेस्पॉन्डिंगली बढ़ नहीं रहा है, एसेट साइड में कुछ है, तो फिर आपको उस तरह से सिग्नल मिल सकता है कि वो डाइवर्ट कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज आई मीन डेफिनेटली आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं पूछ के कि ये फाइनेंशियल देख के बताइए क्या लग रहा है। और अदरवाइज ऑल्सो ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे अब अभी तो नए बायर्स की हम बात कर रहे थे, आप फाइनेंशियल वगैरह देख के, अब एग्जिस्टिंग बिजनेस की हम बात करते हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो बायर्स हैं आपके, वो एज आप उसमें डिफाइन कर लीजिए, 5 साल पुराना बायर है, 10 साल पुराना बायर है, 25 साल पुराना बायर है। अब जहाँ पे जितनी एज बढ़ती जाती है,
आई एम 100% श्योर उतना विजिबिलिटी आपको बढ़ती जाती है कि वो क्या कर रहा है पैसे के साथ, बिकॉज नाउ ही इज योर फ्रेंड, ही इज कमिंग टू योर हाउस, वो आप पार्टीज में शामिल हो रहे हैं सब, तो आपको इजीली पता रहता है कि उसका पैसा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपको वो इमोशंस दूर ही रखने हैं, आपको वो बिजनेस डिसीजन लेते समय वो इमोशंस को बीच में नहीं लाना है कि आपको पता है वो डाइवर्ट कर रहा है पैसा, बट आपको स्टिल आप उसको माल सप्लाई किए जा रहे हो। दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए। अगर वो आप उसकी लेजर्स उठा के देखिए, मतलब अपनी लेजर्स देखिए अबाउट दैट पर्टिकुलर बायर, कि उसने लास्ट कितने पेमेंट कितना दिनों में किया और उसका पेमेंट पैटर्न क्या, आपसे कितना ले रहा है, आप बाजार से थोड़ा पता कीजिए वो क्या कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि अगर वो बहुत सारे लोगों से खरीद रहा है और ही इज डिलेइंग, सिस्टमेटिकली डिलेइंग, लाइक वन लॉट में आपको पेमेंट टाइम पे कर रहा है, किसी और को डिले कर रहा है, सेकंड लॉट में आपको डिले कर रहा है, किसी और को पे कर रहा है, दीज आर ऑल्सो साइंस ऑफ डाइवर्जन ऑफ द मनी। अगर बिजनेस सब कुछ ठीक है, आपको भी आपको बिजनेस प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, आपके बायर को भी आपका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, सो देयर इज नो रीजन फॉर डिलेइंग अ पेमेंट एनीवेज। वो डिले कर रहा है मतलब आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो डाइवर्जन ही कर रहा है। अगर आपके सामने कोई मैकेनिज्म नहीं है फाइंड आउट करने का वेदर ही इज डाइवर्टिंग अ फंड और नॉट, सो गो बाय द assumption that he is, go by the worst assumption that he is diverting, he has got money, he is not paying, so now what to do? So these are the tools and techniques where you can monitor and you or you can select a good buyer and keep those good buyers in your portfolio. So these are the way you can identify the good buyer. Wonderful. So Suresh, you mentioned about 2-3 parameters. One is you mentioned about referencing before you get into an agreement with a buyer who's going to continuously buy. So one is check for references. Second, you also touched upon very briefly on tenure of the person in the connection that you have built. So अगर आपने 10 साल से किया है, 5 साल से किया, whatever that tenure is, or how long the person is there in the market. The third is financials, which you feel that it is available on several agencies, and obviously corporate affair websites पे तो होता ही है अगर वो private limited company है या नहीं है. I think I see that there is a lot more requirement to be in touch with your customer and know what he's doing. Exactly. उससे आप वो buyer के साथ कितना trade करना चाहिए ये आपको जानकारी ज़्यादा मिलती है. Exactly. Okay, we'll come to the second part of the third point that you made, which is what are the 3-4 things that one needs to do to make sure that you're monitoring your buyers well. Assuming हम पहला identification में हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, references नहीं ले पा रहे हैं, financials नहीं देख पा रहे हैं, but हमारे SMEs जो हैं, including us, a lot of our repeat buyers. तो हम वहां पे हम मॉनिटरिंग कैसे हम ठीक से कर सकते हैं, सो दैट इफ यू नॉट डन द आइडेंटिफिकेशन राइट, एटलीस्ट वी नाउ करेक्ट. सो एक इंटरनल सिस्टम हमको बनाना चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, जो प्राइमरीली रिवॉल्व अराउंड करता है आपका बकेटिंग पे, एजिंग पे. सो आप हमेशा बायर्स को एजिंग में डिवाइड करके रखिए कि कौन कितना क्या बिहेवियर है उसका, इट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग. तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई बायर हमेशा डिले करता है, 10-15 दिन हमेशा डिले करता है. तो अगर आप एजिंग एक रिपोर्ट बनाना शुरू करेंगे हर मंथ, तो आपको वो बिहेवियर पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा कि ये बायर है वो हमेशा 15 दिन डिले कर रहा है. कुछ एक बायर है जो हमेशा 60 डेज डिले करते हैं, कुछ एक बायर हमेशा 90 डेज डिले करते हैं. सो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पुट एवरीथिंग इनटू अ स्ट्रक्चर, अ फॉर्मेट, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग दैट फॉर्मेट कि ये बायर किस टाइप का बिहेवियर करता है. सो दीज आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉनिटरिंग योर बायर्स, एंड देन यू बिहेव विद देम अकॉर्डिंगली. सो अगर आपका कोई बायर है जो कि सडनली 30 दिन डिले कर रहा था, वो 60 डे कर रहा है, 90 डेज डिले कर रहा है, सो नाउ यू नो द बिहेवियर बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग इट फ्रॉम लेट्स से डे 1. अभी जब कुछ सब कुछ ठीक है, बायर ने पहला ऑर्डर लिया, दूसरा ऑर्डर लिया, एंड ही इज पेइंग ऑन टाइम. अगर आप तब से, अगर आपके पास एक सिस्टम एंड स्ट्रक्चर है मॉनिटरिंग का, तो जब ये बायर मान लीजिए थोड़ा स्लो पेमेंट कर रहा है, तब तक आपके पास एक बिहेवियर उसका तैयार हो जाता है. तो तब आपको कॉल लेने में ईजी होगा कि ये आज की डेट में क्यों कर रहा है. So then you use your all those other techniques to find out कि ये क्या possibility हो सकती है और how to stop this at that point in time. But monitoring really revolves around your aging of the particular buyer. At any point in time, you should know with remarks that why this buyer is, let's say, paying on time and why this buyer is not paying on time, and how much delay a specific buyer does. You can
बकेटेड, सो आपको वो भी हेल्प करेगा प्लानिंग में कि आपको कितना एक्सपोजर रखना है। आप कोई बायर है जो कि बहुत डिले कर रहा है और आप उसको और ज़्यादा माल सप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये कैन बी अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, बिकॉज वो एक्यूमुलेट करता जाएगा व्हेन देयर इज अ थ्रेशोल्ड और एक बड़ा लेवल उसके पास हो जाएगा, उस समय वो भाग जाएगा। तो आप 1 लाख उसने लिया, आपको पैसा दिया, 2 लाख लिया, 5 लाख या 10 लाख लिया, जैसे ही वो 50 लाख हो जाता है वो आपको नहीं पे करेगा और भाग जाएगा। सो जब से आप 1 लाख का सामान उसको बेच रहे हो, मान लीजिए 5 लाख से उसने डिले करना स्टार्ट किया, तो यू हैव अ गुड टाइम टू कट योर लॉसेस। So monitoring starts from a very simple spreadsheet, aging with remarks that everybody should. Wonderful, wonderful. How important, Suresh, is contract? Contract definitely बहुत important है, but India में all of us know that the legal recourse takes a lot of time, and in our business the money lost and it's not coming in time money is not coming in time is anyways a big loss. So अगर हमारे पास legally sound footing है, but still we're not able to convert this into cash, it really defies the purpose. But all said and done, at the same time I know that the contracts in a small business बहुत डिफिकल्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होती है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने में, वर्डिंग्स प्रॉपर रखने में, और उसके बहुत लूपहोल्स भी निकाले जा सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टाइम्स टू कम। सो अगर आप एक थ्रेशोल्ड से ऊपर का सामान बेचना चाह रहे हैं, नीचे तो ठीक है पर्सन टू पर्सन होता है एंड उसके रिकवरी मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट, बट आप एक थ्रेशोल्ड बनाइए अपने बिजनेस के लिए कि अगर ये एक 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 50 करोड़ है, जो भी आप एक थ्रेशोल्ड बनाइए कि अगर ये थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा तो हमको लीगली एवरीथिंग एकदम बराबर रखनी है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट से लेके इनवॉइस से लेके व्हाट यू राइट इन द ईमेल, एवरीथिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज यही सारी चीजें हैं जो हेल्प करेंगे हमको जब हम एनसीएलटी जाएंगे या दूसरे किसी कोर्ट में जाएंगे, और फास्टर रेजोल्यूशन के चांसेस हैं। अभी जिस तरह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गया है, तो चांसेस ज्यादा है, और अगर आप ये सब चीजें रखेंगे तो ही आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। Wonderful. So, Suresh, now I'm coming to what action can we take for things that are receivables. I know there is one question here. Jayesh Gulcher is asking, hello Hardik, I have 4 lakh rupees stuck with one of my hospitality clients. We have supplied all material and now they are raising unnecessary and wrong concerns over quality of my product. How do I get my money recovered? So assuming this is not the exact same situation, but बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी रिकवरी में पैसा अटका हुआ है. What is the discourse that they can take? Obviously recovery is a very tricky subject. आपका पैसा अटकता है डेफिनेटली नाउ, जैसा मैं आपको पहले भी बोला था, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका बराबर है उसके बाद भी लोग डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। एक चीज़ है कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, हमने ग्लोबली देखा है जहाँ पे भी लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, दे विल ऑलवेज रेज अ डिस्प्यूट कि भाई आपने तो सप्लाई नहीं किया था एज पर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड देन गो ऑन विद द लीगल प्रोसेस ऑफ जस्टिफाइंग वेदर यू हैव सप्लाइड द क्वालिटी क्वांटिटी। और वो लीगल रिकॉर्स जैसा मैंने बताया इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, तो वो कभी आता नहीं है। आपको जब आपने सप्लाई किया और उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला मॉनिटरिंग हमने करना स्टार्ट किया, और अगर आपका पैसा 30 डेज डिले होता है, 60 डेज डिले होता है, आपको रिकवरी में एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing in recovery is time. What point in time you start to deploy the pressure, and to answer to that is the sooner the better. तो आपको हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि आपका हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट है, आपने उसको 4 लाख रुपए सप्लाई किया, 4 लाख का माल सप्लाई किया, 30 दिन में उसको पे करना था। आपने क्या किया 30th डे पे? क्या आपने 30th डे पे ये सोच के चले कि नहीं भाई ये पे कर देगा, ये कुछ टाइम में पे कर देगा, एंड देन वो 30th डे आपका 60 दिन हो गया, इस बीच आपने कुछ खास स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिए। एक ये सिनेरियो हो सकता है 60 डे से 90 डे हो गया, तब आपने उसको प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि भाई अब तो 90 डेज हो गए, बहुत टाइम हो गया, अब आप पे कीजिए, तो तब आप उसने स्टार्ट किया कि आपका तो डिस्प्यूट है। सो बेसिकली 90 डेज तो आपके एनीवेज चले गए, पैसा आया नहीं,
वर्किंग कैपिटल आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो आपके ऊपर बढ़ती चली जा रही है, और अब द होल रिकवरी प्रोसेस इज डिलेड बाय 90 days. अब आप जो भी स्टार्ट करेंगे आफ्टर 90 days, इट विल रिजल्ट इन अनदर 90, 120, 150 days. So your whole process got delayed. जबकि अगर आप सेकेंड सिचुएशन में, बेस्ट सिनेरियो में, अगर आप 30 days पे उसको बोलेंगे, अगर आप मुझे आज पैसा नहीं दे रहे हो या 5 दिन में नहीं दे रहे हो, ये रहा मेरा लीगल नोटिस, आई एम गोइंग टू कोर्ट, आई एम गोइंग टू टेक यू टू एनसीएलटी. Now this client is not prepared for this. In 90 days he is prepared because he knows कि 60 days में अब आप पैसा मांगने वाले हो, so he is preparing himself. फिर 90 days में तो उसको डेफिनेटली पता है कि आप पैसा मांगने वाले हो, आप लीगल धमकी देने वाले हो, so he is prepared. But 30th day में जब उसका ड्यू था और 31st 32nd day में जब आप strongly आते हो, he is not prepared. He is not made up his mind to default you. So chances are that he will succumb to your pressure and he will pay up you against all the other receivers. So like उसके पास 5 लोग हैं जिनको उसको पैसा देना है, 5 में से 4 लोग वेट कर रहे हैं 30 दिन, 60 days, 90 days, और आप हो जो कि आप उसको बोल रहे हो मुझे आज ही चाहिए, नहीं तो मैं आपको कोर्ट में ले जाता हूँ, तो चांसेस आर दैट आपको वो पहला पैसा दे के चुप करा देगा. सो द टाइमिंग इन रिकवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका ये टाइम निकल चुका है, 90 days, 120 days, 150 days निकल चुके हैं, अब तक आपने अगर प्रेशर नहीं डाला है, अब वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो आप सिर्फ उस पर लीगल प्रेशर ही डाल सकते हैं. देयर इज नो अदर वे एंड चांसेस दैट दिस विल प्रोलॉन्ग फर्दर, बिकॉज अब तो और भी इकोनॉमिक सिचुएशन इज गेटिंग वर्स. तो आपको सिर्फ उस पर लीगल प्रेशर फॉलो अप करते रहना चाहिए, और दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज प्रोबेबली गोइंग टू हेल्प. So Suresh, one follow-up question on this: how expensive or easy it is to actually send somebody a legal notice? it is very in terms of money and बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. अगर आपके पास एनीवेज कोई लॉयर है तो वो आपके लिए नोटिस भेज देगा, अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन लॉयर्स फीस. तो अगर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव लॉयर्स नहीं है तो डेफिनेटली वो एनीवेयर बिटवीन लेट्स से 500 rupees to 2000 rupees, 2500 rupees, people can send a notice. तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. But okay, sorry Suresh, sorry, I'm saying वो चीज़ें ज़रूरी है, चाहे लीगल नोटिस एक्सपेंसिव हो या रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ द क्लाइंट इज टेकिंग दिस नोटिस. वो क्लाइंट को नोटिस भेजेंगे तो मैसेज क्या जाएगा, हो क्लाइंट वो पहले ही रिएक्ट करेगा कि मैं बहुत नाराज हूँ, आपने मुझे लीगल कैसे भेज दिया, आपने ये किया वो किया, कुछ भी हो, वट एवर द रिएक्शन मे बी, ही इज फीलिंग द प्रेशर एंड ही विल पे यू आउट. खुशी खुशी देगा या नाराज होकर देगा, और आपका एज अ बिजनेसमैन ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू गेट द मनी, नॉट टू प्लीज समबडी बाय सेइंग ठीक है आप आराम से पे कीजिए कभी. So this is the behavioral change that is required, right? Correct. I just take the liberty, Suresh, to add to your point. Sure. I think audience, I would like to know from all of you. I have a friend of mine, as matured and as veteran as Suresh is right now talking to us, and this guy is a lawyer, and he helps making sure that these notices and these things are done in the right fashion. If you guys think you want to listen from him, how this notices can be sent out and what the charges are and all of that, then just put a thumbs up or say a yes in the comment box, in the chat box, so that I can arrange for another webinar and he will be there. Now, Suresh, just to add to what you are saying, I think बहुत ही relevant points आपने अभी तक add किए हैं. Of course, I have one more question to go for you. That prevention is better than cure. So आप बोल रहे हो कि जो बायर है उसको पहले इवेल्युएट करो, आपने 2-4 पैरामीटर्स दिए, और फिर बायर के साथ बिजनेस करना शुरू कीजिए. दूसरा जो आपने बताया कि बायर के साथ शुरू करने के बाद उसको मॉनिटर कीजिए उसके पेमेंट का साइकिल, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एजिंग, और वो एनालिसिस के बेसिस पे आपका बिहेवियर चेंज कीजिए. बिहेवियर इन द सेंस यू कुड प्रॉब्ली रेज द प्राइस, you could probably not do an X amount of business. एक लेवल बना लो, वो लेवल के ऊपर आप उनसे बिजनेस नहीं करोगे. आपने ये भी बताया कि कस्टमर को इन अंदर लेने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्रेशोल्ड के बाहर अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली करिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेंशन्ड इज टेक टाइमली एक्शन, बिकॉज एक सडन एक्शन व्हेन द पर्सन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसको थोड़ा सा हिला देगा, एंड द चांसेस आर यू गेट योर मनी बैक.
golden words from you, Suresh, that I'm going to note down after this call in my diary is the fact that the only job of a business is to make sure that the money comes in. It's not a job to please somebody. That job is called friendship, and let that be outside of your business. Exactly. Now, one major question, Suresh, that I want you to answer is, how can you de-risk yourself with services like yourself? आपके जैसी सर्विसेज से कैसे इसको de-risk किया जा सकता है, रिस्क कम किया जा सकता है? जी, तो डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस साइज मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. जो हम लोग बेसिक चीज़ पे जोर देते हैं वो है, देखिए कोई भी चीज़ डी रिस्क करने के लिए आई थिंक इंश्योरेंस से बेटर ऑप्शन नहीं होता है. मान लीजिए आप बीमार पड़ गए तो आप इंश्योरेंस ही लेते हैं. आप कितने भी हेल्दी रहना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ रहता है, नहीं बीमार होता है तो हम इंश्योरेंस के पास जाते हैं, और वो डेफिनेटली इज द लास्ट रिसोर्ट. सो हमारे पास एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है naturally which helps companies who lose their money to the buyer. तो हम वो इंश्योरेंस इन्वोक करके आपका पैसा दिलवा सकते हैं. तो क्या होता है, इंश्योरेंस कवर्स 2 कंडीशंस. अगर आपके बायर इंसॉल्वेंट हो गए, मान लीजिए जेन्युइनली उनके पास पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गए, आपने उनके ऊपर केस कर दिया, केस एडमिट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वो बेसिस पे आपको पैसा दे देगी. तो एटलीस्ट आपका बिजनेस चलता रहेगा. भले ही वो बायर जब भी दे, वो इंश्योरेंस कंपनी का हेडेक है, वो बाद में रिकवर करेगी. सेकेंड सिचुएशन हम कवर करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, विलफुल डिफॉल्ट. तो क्वेश्चंस लाइक दीज, जहाँ पे अभी वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड क्वेश्चन सेइंग दैट 4 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, अब वो नहीं पे कर रहा है. सो इंश्योरेंस आल्सो कवर्स दैट सिचुएशन, जहाँ पे कि हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए उसका एजिंग 90 से ऊपर चला गया, तो आप इंश्योरेंस क्लेम डाल दीजिए. इंश्योरेंस कंपनी एज अ थर्ड पार्टी विल हेल्प यू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देती हैं, और एट द एंड ऑफ लेट्स से 5-6 मंथ प्रोसेस, इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन पेज और नॉट. सो ये एक इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई है. इसके अलावा सो दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन. But insurance may not be available for a very small client. So insurance company वहाँ पे काम effective होती है जहाँ पे आपका minimum threshold, minimum exposure level from a buyer is let's say 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, और आपका turnover let's say 50 करोड़ के आसपास होता है, तो you are fit for insurance structure. Apart from that, then we have a proactive and reactive measures. So proactive definitely is that we have a division which does आउटसोर्स रिसीवेबल मैनेजमेंट. तो जो भी मैं कह रहा हूँ वो पूरे फॉर्मेट्स के साथ और पूरे स्ट्रक्चर के साथ हमारे लोग आपके एसएमई को कंसल्ट कर सकते हैं. सो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं ऑन योर बिहाफ. सो एसएमई कैन फोकस ऑन बिजनेस एंड वी विल डू ऑल दिस बैक एंड जॉब. तो उसमें हम ये सारी आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी कर सकते हैं. थर्ड इज प्योर प्ले रिकवरी, बट प्योर प्ले रिकवरी में भी वी नीड एटलीस्ट सम थ्रेशोल्ड. And pure play recovery में we work on a no collect no fee basis, that we take an assignment on a collection, and अगर हम कुछ collect नहीं कर पाए, so we don't charge anything from the client, and अगर हमने collect कर लिया तो we charge around 20% of the successful recovery. So these are the 3 models where we can help. Apart from that, also on a one-to-one basis we can do smaller consulting, like बिजनेस इंफॉर्मेशन हम निकाल के दे सकते हैं, बायर्स के बारे में एनालिसिस करके दे सकते हैं, क्या एक्सपोजर लेवल्स होना चाहिए. आपको दिख तो गया कि उसका बिजनेस ठीक है, उसका टर्नओवर ठीक है एंड ऑल दैट, बट आप कितना एक्सपोजर लो उस बायर पे एट दैट पॉइंट इन टाइम, दैट थ्रेशोल्ड लेवल आल्सो हैव टू बी डिफाइंड. तो वो भी हम ऑन अ वन टू वन बेसिस करके दे सकते हैं. सो ऑल द 3 प्रोसेस, वन इज इंश्योरेंस टॉप मोस्ट. जो लोग भी उस पे लिए क्वालिफाई होंगे, आई थिंक एवरीबडी शुड बाय दैट इंश्योरेंस. Second is on a regular proactive measure, जहाँ पे ये सारी चीजें, buyer identification, monitoring, recovery and legal processes, that all we do at outsource company. Third is pure play, जहाँ पे कि अब सब कुछ हो चुका है and you want our help to get it recovered and something like that. That also we do, but उसमें threshold बड़ा होना पड़ता है. Let's say 2, 3, 4, 5 करोड़ का अगर होगा तो then it makes sense to deploy, because हमारी recovery mechanism, everything is purely legal and no hard measures. It's purely legal and a more sophisticated way of recovering. हम लोग वहाँ पे इफेक्टिव होते हैं जहाँ पे बिजनेसेस है मिड और लार्ज साइज के, जिनको डर रहता है लीगल प्रोसेसेस का, या कुछ टाइप के कम्युनिकेशंस का, या इधर उधर पहुँच जाएं,
मिनिस्ट्रीज में पहुंचे, कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाएं या लीगल एक्शन स्टार्ट हो, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रिकवरी में भी आर मोर इफेक्टिव. So third way we can assist the client in terms of doing recoveries, POCLA recoveries. These are the three. Wonderful. Wonderful. So I have some questions, Suresh, and I think we can answer that. One question is from Kevin Shah. He is asking, what if the turnover is 15 to 20 crores? So I guess he wants to know if the turnover is between 15 to 20 crores, which कौन सा option आपने जो बताया उसमें से बेहतर रहेगा उनके लिए? 20 crores turnover हम लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस के लिए. So we can have a small little exchange of information जहाँ पे we'll ask more slightly more detailed view of the business कि आपका buyers कितने हैं, per buyer exposure limit कितना है, overdues आज की डेट में कितनी है, और past loss ratios आपके क्या हैं, portfolio आपका overall portfolio कैसा लग रहा है. अगर ये अच्छा दिख रहा है तो we can still give you an insurance solution. If not, then probably we can start with the outsourced receivable management and take you to that level where we can get an insurance. So get your books in order, and then insurance company can come in and absorb the risk. Wonderful, wonderful. There's one more question by Somil Jagani. How to take out insurance of invoices and what is the cost? So insurance जो available है वो ये वन ऑन वन बेसिस पे नहीं होता है, ये होल पोर्टफोलियो इंश्योरेंस होता है. तो जब आप ये इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर योर होल पोर्टफोलियो, टोटल टर्नओवर, एंड द कॉस्ट ऑन टोटल टर्नओवर इज, लेट्स से अगर आपका 50 करोड़ के आसपास का अगर आपका टर्नओवर है तो रफली 6 से 7 लाख रुपए टोटल में साल भर के इंश्योरेंस कॉस्ट में आप पूरा टर्नओवर कवर कर सकते हैं. और अगर आपका मान लीजिए 100 करोड़ के आसपास टर्नओवर जाता है तो वो 20-25 पैसे के आसपास, 20-25 लाख रुपए के आसपास में आपका टोटल टर्नओवर. Wonderful. So Suresh, before we call it a day, I want one statement from you that can help all of us safeguard ourselves. One principle that all of us need to follow to be superlative when it comes to receivable management. Yeah, so the crux of receivable management is definitely time. Time is the essence. So you need to do everything in that specific period of time to really be successful in your receivable management. So you, whatever I say, it always revolves around that time process, that when you do buyer identification, you always see at this point in time, let's say you have option of a very long-term buyer or a new buyer, but at this point in time, who is the buyer who is most likely to pay back? So that's the time. Similarly, when you do buyer monitoring, you do always said in the buyer bucketing. So time is definitely the essence. As soon as the buyer shifts from 30 days to 60 days, you need to take an action. And also in the recovery, the time is the essence, that अगर आज की डेट में उसने डिले किया और आज आपने एक्शन नहीं लिया, so you lose the chances. Every day you delay, the percentage of your recovery goes haywire. So from, let's say, a very, very broad example, that if your terms are 30 days and if the buyer is overdue of 60 days, so as soon as it gets 60 to 90, your chances go down by 25%. So that's the kind of a margin we're talking about if we lose, let's say, a couple of days in recovery. So definitely time is the essence of your receivable management. Wonderful. Thank you very much, Suresh. It was lovely talking with you. For all the visitors for this webinar, thank you very much for coming. I think एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही important message जो सुरेश जी ने आज हम सभी को दिया है is to action even when nobody is looking. यानी सारा टाइम हमें संभालना है even when it is not required. हम नहीं बैठ सकते ये सोच के कि होता है, चलता है, देखा जाएगा, because then you will not get the business. कस्टमर को पाने की लालच में उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, उसके बारे में चेक नहीं करना. ऑब्वियसली अनलेस यू आर इन रिटेल यू कांट चेक एवरीबॉडी, बट अगर आप किसी होलसेलर के साथ काम कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हो, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चेक अगर आपका काम जिसके साथ हो रहा है वो बंदा सही है, वो बिजनेस सही है या नहीं है. इट डज नॉट मैटर वेदर आपको वो बिजनेस आता है या नहीं, इफ वो पैसा ही नहीं देता है तो वो बिजनेस कमा के भी आपने क्या कर लिया. So I think time is what we will take as a summary on this.
For anybody, I see a few questions that are still coming on, but with the time that we are in, I would request all of you guys who have questions right now or questions that will come further on, I would request you guys to ask all the questions on the email address that I'm going to ask Fauzia to put it up across on the chat box. Fauzia, can you put up Dhananjay's email so that anybody who has a question or wants to reach out to Suresh, we can pass on those numbers to Suresh, and so that Suresh can talk to them straight. Yep, I'm going to put that up right now. Yeah. So all of you guys, anybody who has questions for Suresh, the only reason why I'm being a filtering person here, because I don't want Suresh to get spammed. Otherwise, he won't come for my webinar invites moving forward. So I just want to monitor the buyers that he gets before he gets them. So Suresh, thank you very much for that. There is the email address. If you have any questions for Suresh, if you want to get in touch with Suresh, please mention in detail आपको क्या चाहिए, what is it that you're looking at, so that we can forward it to Suresh, and then from there on you guys can continue with your discussion. So thank you once again, Suresh. Thank you very much, everybody else. Thank you very much, Suresh Nair, for having this arranged for us. Thank you very much, Fauzia, for all the introduction and having this webinar managed so well. So Thank until you. we meet, for having you. Thank you so much. Thank you, Fauzia. Thank you, Hardik, Thank you. for having us here. you're welcome. Our pleasure tonight. You're welcome. So until we meet next time, guys, keep thinking, keep actioning, and keep growing, keep propelling.